الله الرحمن الرحيم لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کے نبی کالی کملی والے جس نبی کو ہم نبی مانتے ہیں، جس نبی پر ہمارا ایمان ہے، اس نبی کی زبانی اور خود قرآن پاک کی زبانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب نے دلیل کے ساتھ مجھے مانا. ابو بکر وہ ہے جس نے بغیر دلیل کے مجھے مانا. صدیق اکبر کے مال کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے جھجک جس مال کو میں خرچ کرتا ہوں وہ صدیق اکبر کا مال. صدیق اکبر کو پوچھا گیا پہلی پسند بتائیں آپ کی پسند کیا ہے؟ تو اللہ اکبر کبیرہ صدیق اکبر نے جس اپنی پسند کا اظہار کیا وہ کیا کہا؟ 3 پسندوں کے اندر ایک پسند یہ تھی کہ میں آپ کا رخ انور دیکھتا رہوں، میں آپ کا چہرہ مبارک دیکھتا رہوں. محبت کا عالم ہم ساری کائنات میں اگر حضور سے محبت کے اعتبار سے کسی کی شخصیت کو پرکھیں گے تو پہلا نام صدیق اکبر کا ہے. اطاعت کے اعتبار سے کسی کو پرکھیں گے تو پہلا نام صدیق اکبر کا آئے گا. لٹانے کے اعتبار سے کسی کو پرکھیں گے تو پہلا نام صدیق اکبر کا آئے گا. پہلے صحابی، پہلا شخص روئے زمین کا جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے بغیر دلیل کے جب اس دعوے کو سنا کہ حضور نے اپنے آپ کو رسول کہا ہے، حضور کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، حاضر خدمت ہو کر دعوے کی سچائی کو پوچھا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میرا ہاتھ آگے مجھے کلمہ پڑھائے. جب کوئی نہیں مان رہا تھا حضور کو، جب حضور کو مانا. جب کوئی نہیں جان رہا تھا حضور کو، جب حضور کو جانا. جب کوئی نہیں تصدیق کر رہا تھا حضور کی، جب حضور کی تصدیق کی. جب حضور کے دین کے معاون بنے. اسلام کو جب غربت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا اس وقت حضور کی ذات پر، دین پر اپنا تن من دھن فدا کرنے والے صدیق اکبر. اللہ کرے ہم سب کو بھی ان کی عظمت اور ان کا مقام، ان کے رتبہ اور ان سے حقیقی محبت اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرما دے. پیارے بچوں، 22 جمادی الثانی یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات اور فیض نبوت کو دل میں لے کر جو سلسلہ آگے بڑھا، جس سلسلے کو ہم تصوف کی دنیا میں سلسلہ نقشبندیہ سے جانتے، اس نقشبندی سلسلے کے میر کارواں بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور اس زمانے میں تصوف کی ایک الگ پہچان کرانے والا، بند کمروں میں چلنے والے تصوف کو آسان شکل میں امت تک پہنچانے والا، دلوں کے تزکیے پر پوری توجہ اور رات دن خدمت خلق کے لیے انسانیت کا درد لے کر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لے کر کندھوں پر اس بوجھ کو اٹھا کر عالم اسلام، پورے عالم کا روز سفر کرنے والا، کل ایک ایسا چراغ جس کی لو سے جو ہے تمام عالم میں جو ہے فیض نبوت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پہنچ رہا تھا، کل وہ چراغ ڈوب گیا. جس شخصیت کا نام ہے محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ، کل حضرت داغ مفارقت دے گئے، ہم سے رخصت ہوئے. سفر میں اچانک خبر سامنے آئی، یقین نہیں ہوا کہ شاید کسی نے افواہ اڑائی. آدھے گھنٹے کے بعد جب تصدیق ہوئی، مانو دل پر بجلی کون گئی. کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی قریب جا کر بیٹھے نہیں ہیں. وہ بات یاد آ گئی کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی محبت تمام انسانوں کے دلوں میں ڈال دے. آج جہاں لوگ اپنوں کے انتظار میں جنازے رکاتے اور انہیں اپنوں کے کاندھے نصیب نہیں ہوتے،
इन अल्लाह वालों की जिंदगियों को देखो। आज वो रुखसत हुए तो दुनिया के हर चप्पे में कोई ना कोई किसी न किसी कोने में बैठकर उनकी मोहब्बत में, उनकी याद में रो रहा है, आंसू बहा रहा है। ये मोहब्बत किसने डाली, किस बुनियाद पर डाली? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बुनियाद पर, अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर। ये सबक है हमारे लिए कि दुनिया में हम पैसा कमा कर कामयाब नहीं, दुनिया में हम नाम कमा कर कामयाब नहीं, दुनिया में हम जाओ जलाल और मर्तबा कमा कर कामयाब नहीं, अल्लाह की मोहब्बत पाकर कामयाब हो जाएंगे, तक़वा इख्तियार करके कामयाब हो जाएंगे, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करके कामयाब हो जाएंगे। बड़े बड़े बादशाह जब अल्लाह वालों के जुलूस देखते थे तो अपने आप पर अफसोस करते थे कि हम बादशाह होकर मखलूक को अपने दर्द में इकट्ठा नहीं कर सकते, लोग उनके दीद में इकट्ठा हो। हमें ये अपने गम के मौके पे भी कुछ न कुछ सबक सिखाते, और ये सबक है कि मैंने अपने शेख को कभी जो है इतनी बीमारी के अय्याम में रोते हुए नहीं देखा। दुआ वगैरह में अलग बात है, लेकिन कल जिस तरह हजरत ने इंतकाल की खबर पहुंचाने के लिए जरूरी समझा मैसेज टाइप करना, तो आंसू रुक नहीं रहे थे, आवाज पे रिक्कत थी। ये चीजें हमें सबक देती है कि ये जो असातिज़ा जो तुम्हें इल्म के मुंतकिल करने में तुम पर मेहनत कर रहे हैं, जिनके जबान से तुम्हारे सीनों तक इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच रहा है, जो तुम्हें इंसानियत का सलीका सिखा रहे, जो तुम्हें इंसान बना रहे, इनका इकराम करो, इनकी इज्जत करो, इनके लिए अपने दिलों में मोहब्बत रखो। मोहब्बत बहुत ऊंचा कर देती है आदमी। इसलिए मेरे सारे बच्चों, आज एक बहुत बड़ी शख्सियत गुज़िश्ता कल हमसे रुखसत हुई, 2 बजे हजरत की जनाजे की नमाज भी होने वाली है वहाँ, है ना। हम सब के जिम्मे है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर, रोज़ाना जो कुरान पढ़े उस कुरान को पढ़कर जो है इन तमाम मरहूमीन के लिए अपना को इसाले सवाब करे, और नफिल नमाजों के ज़रिए इन्हें इसाले सवाब पहुँचाए, अपनी नेकियों के ज़रिए इन्हें इसाले सवाब करे। हाँ, जितना हमारा कल्बी ताल्लुक़ इन अकाबिर से, इन बुज़ुर्गों से बनेगा, उतनी निस्बत, उतना नूर फैज़ा, उतना फैज़ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है वो हम तक पहुँचने में आसानी होगी। हम अपने दिलों को साफ रखें, और इन लोगों को जाने पर हम एक पैगाम अपने आप को जो समझाना है वो ये समझाएं कि देखो, दुनिया की ज़िंदगी ये ख़त्म होने के लिए, एक दिन सबको जाना है। हम आज बच्चे हैं, कल बड़े हो जाएंगे, फिर अल्लाह हमसे कुछ काम लेगा, फिर हम इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में रहें, अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र करते रहें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत कायम करें, हुज़ूर पाक के जानशीन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की ज़िंदगियों को पढ़ें, और उन्होंने जिस तरह हुज़ूर का इत्तिबा किया उस तरीक़े पर हम हुज़ूर के इत्तिबा को करने की फ़िक्र करें, और जब दुनिया से जाए तो सुरखरू होकर, और इस आयत को सुनते हुए इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, इस हाल में कि फरिश्ते हमारे आजू बाजू इस आयत को मुजदे के तौर पर सुना रहे हो, ऐ पाकरू चल अपने रब की तरफ लौट, इस हाल में कि तेरा रब तुझसे राजी, रब की रजा का मुजदा लेकर हम इस दुनिया से रुखसत हो। इसलिए मेरे दोस्त, मैं वो जुमला है ना कि रमज़ान की मुजाहिदे के बाद ईद आती है, ऐसे ही ज़िंदगी एक मुजाहिदा है। इस मुजाहिदे को, इस ज़िंदगी को मुजाहिदे के साथ इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और गुनाह से बचते हुए, अल्लाह को राज़ी करते हुए, इत्तिबा में हुज़ूर की, इताअत में हुज़ूर की गुजारें, ताकि जब हमारा आखिरी वक्त हो तो वो दिन हमारे लिए ईद का दिन बन जाए, है ना। इसलिए आज से हम सब, मेरे लिए भी दुआ करें, हम सब भी, और आज इरादा करें कि अपने तमाम असातिज़ा से, अपने से मोहब्बत करने वाले असातिज़ा से, अपने ऊपर वक्त लगाने वाले असातिज़ा से, अपने लिए जो है तालीमी मंसूबे बनाने वाले असातिज़ा से, अपनी ज़िंदगी की फिक्र करने वाले, तुम्हारी ज़िंदगियाँ अच्छी कैसे गुजरेंगी उस बात को लेकर
मुस्तकिल बैठ कर फिक्र करना, मुजाकरे करना, रात दिन तुम्हारे लिए फिक्रे करना कि तुम एक अच्छी नस्ल साबित हो जाओ, तुम कुछ अच्छे बन जाओ, तुम एक कामयाब इंसान बन जाओ, तुम अल्लाह की नज़र में मकबूल बन जाओ, तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, तुम्हारे अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत आ जाए। ये सारे असातिज़ा इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। इन सब असातिज़ा से अपने दिल को लगाना है, मोहब्बत करनी है ना, और इनसे सीख सीख कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को करना है, हुजूर की इताअत करनी है। अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस शेर के साथ हज़रत पीर साहब के बारे में कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरी क्योंकि सिलसिले की मुनासिबत से मेरे शेख सैयदी व मौलाई मुफस्सिर कुरान आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना सैयद तलहा साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया, ये मेरे शेख इदारे के सरपरस्त, हम सब के प्यारे, इनके शेख हैं हज़रत पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो कल दुनिया से रुखसत हुए। तो एक निस्बत अल्लाह ताला उस निस्बत की लाज रखकर हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह ताला हज़रत वाला के जाने के बाद जो खला पैदा हुआ है उसे अपने फजल से, अपने करम से पूरा फरमा दे, और अल्लाह ताला हज़रत के फैज़ को हम सब के साथ आइंदा उनके जो चाहने वाले और उनके जो जानशीन हैं उनके वास्ते से फैज़ अल्लाह हम सब तक जारी व सारी रखे, और तमाम खानकाहों को, तमाम मराकिज़ को, तमाम दीनी इदारों को, तमाम मदारिस मकातिब को अल्लाह आबाद करे, दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मैं मुफ्ती अबुल कलाम साहब से दरख्वास्त करता हूँ हजरत के बारे में मुख्तसर बात रखिए, उसके बाद इंशाअल्लाह फौरन दुआ होगी।